الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیں جھوم جھوم کر درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہے خوب لکھا ہے، کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے، کبھی دشمن کی مٹھی میں بھی رہ کر بول دیتا ہے، رسول اللہ سچے ہیں یہ کنکر بول دیتا ہے، اور نہیں کٹ پائے گی گردن پہ سر کی اے خلیل اللہ، نہیں کٹ پائے گی گردن پہ سر کی اے خلیل اللہ، نبی کے عشق میں چاقو یہ ڈھل کر بول دیتا ہے، اور نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں، نبی کی نعت پڑھ کر دیکھیے شہر مدینہ میں، جزاک اللہ مدینے کا کبوتر بول دیتا ہے، اور جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، جو راہ حق میں مر مٹتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، یہ نیزے پر حسین ابن علی کا سر بول دیتا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا ہے خوب لکھا ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہے سوچ کر بولا کرو، مصطفیٰ خیر الورا ہے سوچ کر بولا کرو، مالک ہر دوسرا ہے سوچ کر بولا کرو، اور آمد سرکار پر کعبہ جھکا جس کے لیے، آمد سرکار پر کعبہ جھکا جس کے لیے، وہ حبیب کبریا ہے سوچ کر بولا کرو، اور رحمت للعالمین بن کر جہاں میں آ گئے، رحمت للعالمین بن کر جہاں میں آ گئے، وہ نبی نور خدا ہے سوچ کر بولا کرو۔ ایک بار جھم جھم کر درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تو رحمت دے کر بھیجا، حضرت سیس کو بھیجا تو رحمت دے کر بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا تو رحمت دے کر بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا تو رحمت دے کر بھیجا، حضرت اسماعیل کو بھیجا تو رحمت دے کر بھیجا، حضرت زکریا کو بھیجا تو رحمت دے کر بھیجا، حضرت دانیال کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، حضرت یونس کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، حضرت یوسف کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کے بھیجنے کی، جب باری آئی اپنے نبی کو بھیجنے کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کو بھیجنے کی، تو رب نے کہا اے مصطفیٰ میں نے آدم کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، میں نے سیس کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، میں نے ابراہیم کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، میں نے نوح کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، میں نے دانیال کو بھیجا رحمت دے کر بھیجا، لیکن اے مصطفیٰ میں تجھے رحمت دے کے نہیں بلکہ تجھے مکمل رحمت بنا کر بھیج رہا ہوں۔ تبھی تو شاعر نے کیا ہی خوب لکھا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اور آگے
آگے میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر کو دنیا میں بھیجا سب کو اللہ نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا بنا کر بھیجا، سبحان اللہ۔ لیکن جب باری آئی مصطفیٰ کو بنا کر بھیجنے کی تو رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ میں نے آدم کو اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، سیس کو جو ہے اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، نوح کو جو ہے اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، ابراہیم کو جو ہے اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، اسماعیل کو جو ہے اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، دانیال کو اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، یونس کو اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، عیسیٰ کو اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، موسیٰ کو اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا۔ لیکن مصطفیٰ رب فرماتا ہے اے میرے پیغمبر، اے میرے چہیتے رسول، میں تجھے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تجھے تیری مرضی سے میں بناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا دیکھتے چلے، مصطفیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میری پیشانی اس طرح ہونی چاہیے، رب نے بنا دیا۔ مصطفیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا پیشانی اس طرح ہونی چاہیے، رب نے بنا دیا۔ مصطفیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا چہرہ ایسا ہونی چاہیے، رب نے بنا دیا۔ پھر مصطفیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میری لمبائی اتنی ہونی چاہیے، رب نے بنا دیا۔ صاف لفظوں میں سمجھتے چلو، آدم سے عیسیٰ تک جتنے پیغمبر کو رب نے بھیجا اپنی مرضی سے بنا کر بھیجا، لیکن مصطفیٰ کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے مرضی کے مطابق بنا کر بھیجا۔ صاف لفظوں میں سمجھتے چلو، بننے والے کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، بنانے والے کو رب العالمین کہا جاتا ہے۔ بننے والا جو ہے ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے تشریف لایا، اور بنانے والا جو ہے پوری جہان کا پالنہار ہے۔ اور میں آپ کو اور تیزی کے ساتھ بتاتا چلوں کیونکہ میرے دوست یہ جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور آج کی رات جو ہے بابرکت رات ہے، آج کی رات جو ہے انمول رات ہے۔ آج کی رات ہم جتنا ہو سکے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرے، تسبیح پڑھا کرے، عبادت کیا کرے، اور ہر رات کی طرح آج کی رات کو ہم جو ہے نہ برباد کر دے۔ اس لیے میرے دوستو یہ سرکار کی محفل ہے، جب تک کہ ہم بیٹھے رہیں گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا رہے گا۔ ہم سبحان اللہ کہیں گے ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، ہم جب تک کہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس لیے مسلمان ہو، ہمارا اور آپ کا کل کا سونا جو ہے نصیب کے لیے ہوگا، لیکن آج کا ابھی کا بیدار ہونا یہ نصیب کے لیے نہیں بلکہ خدا کے حبیب کے لیے ہے۔ اس لیے آج کی رات جاگو بھی اور ہم اپنی سوئی قسمت کو بھی جگائیں۔ اس لیے میرے دوستو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا کرے، اور محبت کرے تو کس طرح کرے؟ کیونکہ ایک انسان جو ہے نا امام سے اگر آگے بڑھتا ہے نا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چار لوگ جو ہے اس کی ٹوپی پاک، اس کا لباس پاک، غسل کر کے وضو کر کے نماز پڑھا، اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا کہا نہ تمہاری نماز ہوئی، نہ تمہاری نماز ہوئی، نہ تمہاری نماز ہوئی، نہ تمہاری نماز۔ نمازی نے کہا حضرت میرا لباس پاک، میری ٹوپی پاک، میں وضو کر کے آیا تھا، میں غسل کر کے آیا تھا، پھر میری نماز کیوں نہ ہوئی؟ تو امام صاحب نے کہا ایسا ہے تو نے جو رکوع کیا امام کے رکوع سے پہلے کیا، تو نے جو قیام کیا امام رکوع سجدہ کیا امام کے سجدے سے پہلے کیا، تو نے جو سلام پھیرا امام کے سلام سے پہلے پھیرا۔ تو صاف لفظوں میں سمجھتے چلو اگر نماز کو بچانی ہے تو امام کے پیچھے رہنا ہوگا، اور ایمان کو بچانا ہے تو امام الانبیاء کے پیچھے رہنا ہوگا۔ اس لیے نبی کی شان میں ستر برابر ہم اور آپ گستاخی کرتے نا، نہ ہم ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ تمام نبیوں کے سردار کی محفل ہے، اس لیے ہم جب تک یہاں بیٹھے رہیں نا جی بھر کے درود و سلام پڑھا کریں، کیونکہ میرے دوستو جب ہم درود پڑھا کرتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود اپنے کانوں سے درود سنا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پہچانتے بھی ہے کہ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی مجھ پر درود بھیج رہا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن درود شریف جو ہے اگر ہم کو
गुंबद खजरा को अपने तस्वुर में बसा कर पढ़ते हैं ना, वो दुरूद मुस्तफ़ा अपने कानों से समाअत फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हम दुरूद पढ़ा करें ना तो गुंबद खजरा को जो है तस्वुर में बसा कर जो है दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और जो है जुलूस में भी हम जब निकले ना तो बावजू होकर निकला करें। और कोशिश ये करें कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि गैर कौम को जो है हमारे ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल जाए। इसलिए हम चले तो नबी के सुन्नत के मुताबिक तो इबादत है। सुभान अल्लाह। हम बैठे तो नबी के सुन्नत के मुताबिक इबादत है। हम खाए तो नबी के सुन्नत के मुताबिक तो इबादत है। हम पहने तो नबी के सुन्नत के मुताबिक तो इबादत है। आला हजरत को यूं ही शोहरत नहीं मिल गई, बल्कि आला हजरत के जिंदगी का एक एक लम्हा बोला नबी नबी। आला हजरत का किरदार बोला नबी नबी। आला हजरत का अफ़आल बोला नबी नबी। आला हजरत का जब कलम उठा तो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने टूटी हुई चटाई पे बैठकर लिखा था, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छूट गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। अगर हम और आप वाकई अहले सुन्नत वल जमात है ना तो हमें और आपको जो है ये शेर हमेशा गुनगुनाना होगा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम, आओ मैं आपको तेजी के साथ कुछ बातें बताता चलूं, क्योंकि मेरे बाद जो है ना मुफ्ती सलीम साहब की भी तकरीर होनी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका ना लेकर बल्कि कुछ बातें जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हज़रात मोहतरम, आइए तेजी के साथ एक बार झूम कर दुरूद पाक है अल्लाह रब्बुल मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इसलिए हम और आप जो है ना सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करें। आम साफ लफ्ज़ों में मैं आपको कुछ बातें समझाता चलूं। मिसाल के तौर पर इंसानी जिंदगी के लिए जो है ना सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? पानी की जरूरत थी। इसलिए पानी के जो है चश्मे जमीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। इंसान जब चाहता है उस पानी को हासिल कर लेता है। और पानी जो है इंसान जो है पानी सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरत है। लेकिन पानी के बाद जो इंसान दाना के बगैर दाना की जरूरत थी तो इंसान दाना जो है जमीन का जिस्म सीना चीर कर जो है जब चाहता है उगा लेता है। तो इंसानी जिंदगी के लिए दाना से ज्यादा पानी की जरूरत थी और पानी से ज्यादा इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी। क्योंकि इंसान दाना के बगैर 2-4-10 दिन तक जिंदा रह सकता है, पानी के बगैर इंसान 2-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। तो पता ये चला कि पानी दाना से ज्यादा इंसानी जिंदगी के लिए पानी की जरूरत थी, लेकिन पानी से ज्यादा इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत थी। इसलिए हवा को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बिल्कुल नाक के करीब रख दिया, क्योंकि इंसान हवा के बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। तो पता ये चला इंसानी जिंदगी के लिए जो है दाना से ज्यादा पानी की जरूरत थी और पानी से कहीं ज्यादा हवा की जरूरत थी। इसलिए नाक के करीब रखा। पता ये चला अगर इंसानी जिंदगी से हवा दूर हो जाए तो इंसान जान से बेजान हो जाए, और ईमानी जिंदगी से नबी दूर हो जाए तो इंसान ईमान से बेईमान हो जाए। रब कुरान में फरमाता है अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि इंसानी जिंदगी के लिए हवा की जरूरत सबसे ज्यादा थी और ईमानी जिंदगी के लिए नबी की जरूरत थी। इसलिए जो है नबी की जो है इंसानी जिंदगी के लिए जो है जान से ज्यादा नबी की जरूरत है। इसलिए हम नबी से मोहब्बत किया करें। नबी के नाम पर जितना हो सके जी भर के जो है हम खर्च किया करें। नबी के नाम पर जितना हम लुटाएंगे ना कम नहीं होगा। और मैं आपको बताता चलूं, पता है मेरे दोस्तों, बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता? वही बिलाल हबशी है। अभी तक जो है गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उसी दौर में नबी से मोहब्बत हो गई थी। अभी तक आजादी नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही नबी का चेहरा देखा था, बिलाल चल रहे हैं तो नबी नबी, बैठ रहे हैं तो नबी नबी, लेट रहे हैं तो नबी नबी। उमैया आया, कहा ए बिलाल ऐसा है, तू तो मेरा गुलाम है, तू तो मेरा नौकर है, लेकिन तेरी ज़बान पे नाम किसका है? तो बिलाल ने कहा था ए उमैया कान खोल कर सुन ले, ये जिस्म तेरा गुलाम है, ये दिल मैंने आमना के लाल के नाम कर दिया है, ये दिल मैंने आमना के लाल के नाम कर दिया है। ए उमैया, इस जिस्म पे तेरी हुकूमत चलेगी और इस दिल पे जो है हुकूमत चलेगी ना तो आमना के लाल मुस्तफा की
हुकूमत चलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तक के महदूद नहीं बल्कि बिलाल को तकलीफें दी जा रही है। बिलाल के जिस्म पे जो है गरम पत्थर रखा जाता है, गरम रेत पे बिलाल को लिटाकर जो है गले में रस्सी डालकर जो है गरम रेत पे जो है घसीटा जाता है। तरह तरह की तकलीफ दी जा रही है। बिलाल से पूछता है उमैया, ए बिलाल ऐसा है क्या तुझे जान प्यारी नहीं है? क्या तू नहीं चाहता कि दुनिया में चंसा से हम ले सके? अगर जान प्यारी है ना तो मुस्तफा का नाम लेना बंद कर दे, अपनी ज़बान से जो है मुस्तफा का नाम लेना तर्क कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आजकल का कोई आशिक नहीं था बल्कि वो आशिक बिलाल थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्हें मुस्तफा को जो है बहुत ज्यादा चाहा करते थे, जिन्हें मुस्तफा से इतनी मोहब्बत थी, अपने जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा पैगंबर से मोहब्बत क्या करते थे। उमैया की आंख में आंख डालकर बिलाल हबशी ने कहा था, ए उमैया कान खोल कर सुन ले, कोई और होगा जो अपनी जाने जो है ईमान दे सकता है, लेकिन मुस्तफा का बिलाल अपनी जाने दे सकता है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों हम मुस्तफा से मोहब्बत करें, हम मुस्तफा के नाम पर जितना हो सके ना हम खर्च किया करें। लेकिन आज कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि ऐसा है कि पैगंबर के नाम पर जो है जुलूस निकालते हो, महफिलें सजाते हो, अगर कोई ऐसा मिले तो उससे तकरार करने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे कह देना कि जिस वक्त जो है तुम इससे इस तरह सवाल कर रहे हो ना, ये जमाना भी मेरे नबी का जमाना है। सुभान अल्लाह। खा रहे हैं तो नबी के सदके, हम पी रहे हैं तो नबी के सदके, हम चल रहे हैं तो नबी के सदके, हम बैठ रहे हैं तो नबी के सदके। पता है मेरे दोस्तों आजकल कुछ एतराज करने वाले ये भी एतराज किया करते हैं ना, क्या ये मिलाद की महफिल रचाते हो, जुलूसे मोहम्मदी निकालते हो? क्या ये सिद्दीक़ अकबर के दौर में हुआ था? क्या उमर के दौर में हुआ था? क्या उस्मान के दौर में हुआ था? क्या बिलाल के दौर में हुआ था? क्या साद बिन वक़ास के दौर में हुआ था? और मैं आपको तेजी के साथ बताता चलूं, हमारे बुजुर्गाने दीन ने बताया है। पता है बहुत सारे लोग सवाल करने वाले पहुंचा करते थे तो उन्होंने कहा था, सुनो बहुत बड़ी बात जो है तोल देने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस जमाने में तुम खा रहे हो ना ये जमाना भी मुस्तफा का। और साफ लफ्जों में समझते चलो, नबूवत आदम की थी, जमाना मुस्तफा का। नबूवत जो है शीश की थी, जमाना मुस्तफा का। नबूवत जो है दानियाल की थी, जमाना मुस्तफा का। बल्कि जो है जो भी नबी जितने भी नबी आए सबके अपने अपने दौर में जो है नबूवत थी, लेकिन वो जमाना भी पैगंबर इस्लाम का जमाना रहा है। हर जमाना मेरे मुस्तफा का है। शायर कहता है दाना दाना मेरे हुजूर का है, दाना दाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है। इसलिए मेरे दोस्तों हर जमाना मेरे हुजूर का है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर करम है, हम पर एहसान है। इसलिए इंसानी जिंदगी को अगर इंसानियत मिली है ना, ये किसी और का सदका नहीं बल्कि आमना के लाल मुस्तफा का सदका है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको जो है एक भाई के साथ किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, अगर ये तरीका ये जो है हक के बारे में अगर किसी ने बताया तो उस जात को पैगंबर इस्लाम कहा जाता है। सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया एक भाई का एक भाई के ऊपर क्या हक है, एक बहन का एक बहन के ऊपर क्या हक है, एक रिश्तेदार का एक रिश्तेदार के ऊपर क्या हक है, एक आलिम का एक आलिम के ऊपर क्या हक है, एक माँ का जो है बाप के ऊपर जो है, एक औरत का शौहर के ऊपर क्या हक है, एक माँ का जो है बेटी के ऊपर क्या हक है। ये सब तरीका अगर किसी ने बताया है तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इसलिए मेरे दोस्तों हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जितना हो सके ना हम खर्च किया करें। आप कहेंगे मौलाना अगर मुस्तफा के नाम पर हम खर्च करते हैं तो क्या हमें मिलेगा? तो आपने सुना होगा उलमाए किराम से एक मुस्तफा के सहाबी थे जिनका नाम सुहैब था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सुहैब रूमी अल्लाह अकबर कबीरा इतनी मोहब्बत करते थे ना कि नबी की प्यार में, नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में जो है तमाम दौलत को जो है कुफार और मुशरिकीन मक्के के ने पकड़ा था और पकड़ने के बाद कहा था ये सुहैब ऐसा है जब तुम मक्के में आए थे चलना नहीं जानता था, उठना नहीं जानता था, बैठना नहीं जानता था, मक्के में आकर चलना तूने सीखा, यहाँ बड़े हो गए, दौलत कमा ली और कमाने के बाद जो है आज दौलत ले जाकर जो है माशाअल्लाह मोहम्मद के पास लेकर जा रहा है कि मोहम्मद को दे दूंगा, मोहम्मद जो हमारा मुकाबला करेंगे। तो सुहैब रूमी ने कहा था एक मक्के के कुफार मुशरिकीन कान खोल कर सुन ले, ये
तेरी गलत फहमियाँ है, मुझे दौलत से मोहब्बत नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की ज़ात से मुझे मोहब्बत है। अगर लेना ही है ये दौलत ले ले, और सुहैब के जिस्म पे जो एक लिबास है ना वो लिबास सिर्फ रहने दे। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम दौलत जो है मक्के के कुफार ने जो है हर पर लिया था, छीन लिया था, ले लिया था। अब देखते चले जब सुहैब पहुँचते हैं, सहाबा इकराम ने देखा, कहा मरहबा या सुहैब, मरहबा या सुहैब। सब कह रहे हैं ए सुहैब आप आए खुशी हुई, लेकिन जैसे ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर सुहैब पे पड़ती है, सहाबा ने कहा था मरहबा या सुहैब, मरहबा या सुहैब, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं रबीहा या सुहैब, रबीहा या सुहैब। आलम तसव्वुर में मैंने कहा ए आका सुहैब तन्हा आपकी बारगाह में आया था, दौलत लेकर नहीं आया, लेकिन आप फरमा रहे या रसूल अल्लाह सुहैब बहुत तूने नफा कमाया, बहुत तूने फायदा कमाया। आज भी मुस्तफा के गुंबदे खजरा से आवाज आती है ए मेरे गुलामों, क्या तुझे पता नहीं जो मेरे नाम पर मेरी महफिल पे जो खर्च करता है उसे कभी खसारा नहीं बल्कि वो हमेशा फायदे में रहा करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए नबी के नाम पर खर्च करके देखो, अल्लाह बेशुमार दौलत में जो है इजाफा फरमा देगा। इसलिए हम अल्लाह के रसूल के नाम पर जो है जितना हो सके हम खर्च किया करें, जितना हो सके हम जो है गरीबों को में जो है लुटाया करें, और जो है कोशिश ये करें कि हम जुलूस मोहम्मदी को के अदब को जो है ना बरकरार रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो है ना लोग उस पर उंगली उठाया करें, अदब के साथ हम चला करें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए एक बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद में अपनी तकरीर का इख्तिताम करो। पढ़े झूम झूम कर दुरूद पाक अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मुहतरम एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना आज जो है हमें और आपको जो है दुनियादार के बारे में तो बहुत सारी बातें मालूम होती है, लेकिन पैगंबर इस्लाम के बारे में हमारे नबी कौन है, हमारे नबी जो है हमारे लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी जो है तकलीफें बर्दाश्त की, पूरी पूरी रात मुस्तफ़ा जो है सब बेदारी किया करते थे। लेकिन आज हमें इस्लाम के बारे में, पानी इस्लाम के बारे में कुछ जो है माशाअल्लाह कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा, लेकिन ये नहीं पता कि हमें 5 वक्त में जो है कितनी नमाज है, कितने फर्ज है, कितने सुन्नत है। लेकिन अल मुख्तसर में एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी होने के नाते हम और आप कितने मौके पे झंडा निकालते हैं? 2 मौके पे, एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। लेकिन अगर कोई इंसान हिंदुस्तानी होने के नाते अगर हिंदुस्तान का झंडा जो है पाकिस्तान में लहराना चाहेगा, पाकिस्तान उसे लहरा देगा। पता ये चला हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का झंडा बांग्लादेश में नहीं, बांग्लादेश का झंडा अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका का झंडा अमेरिका में नहीं, अमेरिका का झंडा सऊदी में नहीं, सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, 12 रबीउल अव्वल का झंडा मेरे मुस्तफा का झंडा हिंदुस्तान में भी लहरा रहा है, पाकिस्तान में भी लहरा रहा है, बांग्लादेश में भी लहरा रहा है, अफ्रीका में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है। बल्कि पूरी दुनिया के कौमों मुस्लिम को एक मिजाज मिला, एक दर्स मिला, एक सबक मिला कि मुल्क किसी का भी होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का होगा, कब्जा मेरे मुस्तफा का होगा, हुकूमत मेरे मुस्तफा की होगी। शायद कहता है बेनूर मुकद्दर को अपने पुरनूर बनाया करते हैं। हम यौम विलादत की खुशियाँ हर रोज मनाया करते हैं। अल्लाह ताला है मोती और कासिम नेमत है आका, कब्जे में है उन्हीं के सब कुछ, वो खूब लुटाया करते हैं। हम हैं इंतज़ा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। रब्बी अकबर की बारगाह में दुआ है मेरे परवरदिगार, अगर किसी तरह की गलतियाँ खामी हो तो सरकारी मदीना राहते कल्बो सीना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।